ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کا اور وہ یہ ہے کہ ویٹ لاس تو وہ کر لیتے ہیں لیکن کچھ باڈی کے فیٹ پاکٹس ایسے رہ جاتے ہیں جس سے کہ فیٹ کا جو نظام ہے وہ ویسے کا ویسا رہتا ہے, اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ چاہے جتنی مرضی ایکسرسائز کر لیں, وہ جس کو اسٹبن فیٹ کہتے ہیں, جتنی مرضی آپ اس پہ محنت کر لیں وہ فیٹ جاتا نہیں ہے. اس کے لیے کرنے کے مختلف طریقے ہیں اور ان میں سے ایک طریقہ ایسا ہے جو پاکستان میں پہلی دفعہ متعارف کرایا جا رہا ہے. ان موڈ باڈی ٹائٹ اس کو کہا جاتا ہے اور ڈاکٹر فضیلہ عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریکٹسنگ ڈرماٹولوجسٹ ہیں اور بہت سی ٹیکنالوجیز پاکستان میں لانے کی یہ پائنیئر ہیں. تو ان سے ہم بات کریں گے. سینٹ جانز کنگز کالج لنڈن سے انہوں نے اپنی اسپیشلائزیشن کی ہے اور ان سے ہم جانیں گے کہ یہ ان موڈ باڈی ٹائٹ ہے کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم جی, ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو یہی سمجھا دیں یہ ان موڈ باڈی ٹائٹ جو ہے یہ چیز کیا ہے, یہ ہوتا کیا ہے بھائی؟ اچھا, سب سے پہلے تو ویسے ان موڈ ایک برانڈ کا نام ہے اور یہ ایک امریکن برانڈ ہے جو کہ بڑا انوویٹو ٹیکنالوجی لے کے آتا ہے ایستھیٹک میڈیکل ورلڈ میں. ایستھیٹک میڈیکل ورلڈ کا مطلب یہ ہے کہ پلاسٹک سرجنس کے لیے, ڈرماٹولوجسٹ کے لیے, فزیشنس کے لیے. نمبر 1, انوویٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائنٹیفکلی پروون ٹیکنالوجی لے کے آئی جائے. اچھا, کچھ ایسی بھی چیزیں آتی ہیں, اسی لیے آئی تھنک میری اور شفا کی کل بات ہو رہی تھی کہ یار کیا یہ ڈارک سرکل کا تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, 1% فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہنے کو تو بہت سے ٹریٹمنٹس ہیں کہ آپ اپنا وزن کم کریں, لیکن آپ خود بتائیں کہ فیڈ ڈائٹس آتے ہیں مارکیٹ کے اندر, کئی ایسے ٹیکنالوجیز آتے ہیں جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں. لائپوسکشن تو ایک سرجری کے اندر آ گیا. ہم بات کر رہے ہیں نان سرجیکل میتھڈس کی. آج سے پہلے ٹو بی ویری آنیسٹ میں بڑا اسٹرکٹ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی تھی کہ لائف سٹائل اچھا رکھو, اچھا کھانا کھاؤ, جم جاؤ, دیٹس اٹ. میں نے آج تک کبھی بھی باڈی کنٹورنگ, بائی دا وے اٹس ناٹ اباؤٹ ویٹ لاس, اٹس اباؤٹ باڈی کنٹورنگ. جیسے شفا نے ویری ویل سیڈ کہ چھوٹے فیٹ پاکٹس ہیں, ڈبل چن, آئی بیگس, بڑے موٹے بازو, تھوڑی سی ٹمی, اور جو میرا خیال ہے پاکستانی مردوں کا بہت بڑا ایشو ہے, دے آر پونچی, اور اسٹریچ مارکس پریگننسی کے بعد. یہ خواتین کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں جب کہ کووڈ آیا لوگوں نے ایکسرسائز چھوڑ دی, لوگ جمز جانا بند ہو گئے. مجھے لگتا ہے میں زیادہ سمپیتھیٹک ہوگی, میرا زیادہ دل ان کی طرف چلا گیا, خواتین کی طرف, کہ وہ آ کے مجھ سے لٹرلی دے آر بیگنگ کہ یار میں کیا کروں, مجھے بتائیں, میرا کانفیڈنس شیٹر کر رہا ہے, میرا آئی بیگ نہیں جا رہا, اور سرجری کوئی نہیں کرانا چاہتا, سرجری کے بڑے کمپلیکیشنز ہیں. تو آئی تھنک کہ ایونچولی میں نے سوچا کہ اوکے میں وہ ٹیکنالوجی کیوں نہ لے کے آؤں جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے فار اسمال باڈی فیٹ ایریاز, اسمال ایریاز. اس کے اندر کوئی سرجری انوالو نہیں ہے, اسی لیے اس کا نام ہے باڈی ٹائٹ. اس کے اندر آپ کے بڑے بلکی آرمز, جو کہ میرا خیال ہے شفا آپ اگری کریں گی کہ بلکی نہیں, آپ کے نہیں ہیں, اپنے بات اگزامپل دو, آپ بالکل ٹھیک ہو, لیکن کچھ خواتین ہیں جن کے بڑے بھاری بازو ہیں, ایسا ہی, اور وہ بڑے برے لگتے ہیں. پھر جب آپ وزن لوز کرتے ہیں آپ کی باڈی لوز فیل ہوتی ہے, جس کو آپ فلیب کہتے ہیں. یہ بڑے جینوئن ایشوز ہیں. چائلڈ برتھ کے بعد عورت کا پیٹ, اسٹریچ مارک, حتیٰ کہ خواتین اپنے ہسبینڈس کے سامنے بھی جانے سے کتراتی ہیں. کانفیڈنس اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے, ذرا پروسیجر آسان الفاظ میں سمجھا دیں. اس کے اندر کوئی سرجری نمبر 1 انوالو نہیں ہے, کوئی سٹچز نہیں ہے, کوئی کٹس نہیں ہے, بہت میجر ڈاؤن ٹائم انوالو نہیں ہے. آپ ایک بہت چھوٹا سا پروب جس کے اندر ریڈیو فریکوینسی ہے, نہ وہ لیزر ہے نہ اس کے اندر کوئی اور چیز ہے, اس کے اندر صرف ریڈیو فریکوینسی ہے. ریڈیو فریکوینسی از اے ٹیکنالوجی جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہیٹ آپ اندر اپنے فیٹ پاکٹ کے اندر ڈالتے ہیں ود دا ہیلپ آف اے کینولا یا پروب. شاید ایک ویڈیو بھی ابھی آپ کا چلائے گا, جی وہ چل رہی ہے. اس کے اندر آپ فیٹ سیلز کو توڑتے ہیں. اس پورے پروسیجر کو کہتے ہیں ریڈیو فریکوینسی اسسٹڈ لائپولیسس. لائپولیسس مینس ٹو بریک دا فیٹ سیلز. کسی کے یہاں پہ چھوٹی سی فیٹ پاکٹ ہے, آپ سرجری کے کینڈیڈیٹ تو نہیں ہیں اور آپ جم جانے سے بھی نہیں اس کو ختم کر رہے. شفا اسٹاپ دیٹ, اوکے, یو ڈونٹ ہیو دیٹ ایشو, کیونکہ خواتین ہر چیز, لیکن ہاں جنرلی کئی دفعہ ایشوز ہوتے ہیں. میری لکس دیکھ کے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. توڑ کے فیٹ سیلز کو باڈی کو دے دیتے ہیں, باڈی خود بخود اس کو ڈسپوز آف کرتی ہے, لیکن ہم بہت بڑے فیٹ چنکس کو اتارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریٹریٹ دا فیکٹ دیٹ دس از فار ویری اسمال پاکٹس آف فیٹ. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے مجھے تو ویسے منع کر دیا, لیکن ایک ایشو میں ویسے بتا دیتی ہوں لوگوں کی دیکھنے کے لیے کہ آپ جب یوں کرتے ہیں تو آپ کی چن کچھ لوگوں کی یا تو فیٹ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے, یہ ڈاکٹرز بہتر بتا سکتے ہیں. ہوتی ہے یہ چیز, ان کو پرابلم ہوتی ہے اس سے, مجھے بھی ہے. تو کیسے ریموو کریں گے یہ چن والا فیٹ, اور اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنے سیشنز چاہیے ہوتے ہیں؟ جی اٹ ڈپینڈس کہ کتنا ہے, لیکن موسٹلی 1 سیشن از گڈ انف. اور پھر اگر آپ دوبارہ سے وہ فیٹ نہیں لے کے آ رہے اپنے باڈی کے اندر, تو ایک ہی دفعہ کے اندر نان سرجیکلی آپ نے اپنی ڈبل چن, اپنے آئی بیگس آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ایشو ہے, آپ کو پتا ہے کہ فیٹ آپ کے ٹمی کے اوپر کتنا بڑا ایشو ہے,
और ख़ास तौर पे आई थिंक पाकिस्तानी मैन, आई एम सो सॉरी बट दे आर वेरी पॉन्ची, दे आर। और फिर कई दफ़ा आप उसको बेयर बेली भी कहते हैं बाहर के गोरों के अंदर भी। इसका मतलब है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स। आज से पहले हमारे पास क्या था? लेज़र्स थे। आज से पहले हमारे पास जो लेज़र्स थे, अगर आप वो करते भी थे तो ख़वातीन के अंदर बॉडी के ऊपर, क्योंकि हम सांवली टोन के लोग हैं, हमारे अंदर पिगमेंटेशन इश्यूज आ जाते थे। प्लस डाउन टाइम बहुत ज़्यादा था, स्वेलिंग, ब्रूजिंग, फिर वो छिलके उतर रहे हैं पिक्सल लेज़र के, CO2 लेज़र के। इसके अंदर देयर इज़ नो मेजर डाउन टाइम, हफ्ता 10 दिन थोड़ी बहुत ही स्वेलिंग और उसके बाद दैट इज़ गॉन। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपने एक और जो वर्ड आप प्लीज़ ज़रूर बताइए, जो कि आई थिंक मॉर्फियस। मॉर्फियस 8 इज़ अ रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आप बाहर से डिलीवर करते हैं। बॉडी टाइट रेडियो फ्रिक्वेंसी आप अंदर ले जाते हैं फैट सेल्स के, और फैट सेल्स को तोड़ते हैं। मगर फैट सेल्स को तोड़ने के बाद स्किन आपकी सैग कर सकती है ना, इसीलिए जब हम बहुत ज़्यादा वजन लूज़ करते हैं तो हमारी स्किन लूज़ कर जाती है। लेकिन इसके अंदर जो बाहर वाला प्रोब है, साथ साथ वो स्किन को हीट कर रहा है। सो आप वजन लूज कर रहे हैं उस एरिया से, मगर विदाउट सैगिंग योर स्किन। ठीक है, यानी वो स्किन आपकी जो है वो ढीली नहीं होगी। मुझे यही पूछना था कि लाइपोसक्शन के हम जब साइड इफेक्ट्स पढ़ते हैं तो यही होता है कि स्किन ढीली हो जाती है, इसमें स्किन ढीली नहीं होगी। एग्जैक्टली तो ये देखें ना कितना बड़ा बेनिफिट है। लेकिन मैंने बड़ा सोच समझ के मैं इसको पाकिस्तान में लेके आ रही हूँ, ले आई हूँ। हमने इसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है आज आपके प्रोग्राम से पूरे पाकिस्तान के लिए। दिस इज अ वेरी गुड एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन मेरा मसला वही है डॉक्टर साहिबा, में मुझे डबल चिन से अपनी प्रॉब्लम है और ये रहेगी। और ये अगर हटाई जाए आपके प्रोसीजर के तहत तो ये कितने दिन तक शिफा को घर बैठना पड़ेगा? देखें, शिफा का हर बंदे के लिए कस्टमाइज प्रोसीजर है। शिफा का फैट इतना नहीं है जितना शायद शिफा का मसल लैक्सिटी, मगर मसल लैक्सिटी के साथ साथ शिफा हैज़ अ स्मॉल रिसीडिंग चिन। चिन इतनी छोटी है कि पीछे से उसका जो भी कुछ नेक अगर मैं जितना मर्जी भी टाइट कर दूं उसको फिर भी अपनी ये जगह लटकती नजर आएगी। इसका मतलब है कि इनके अंदर शायद मैं वो करूंगी भी नहीं। इनके अंदर मे बी आई विल गो फॉर अल्ट्रासाउंड एंड आई विल गो फॉर द चिन कंस्ट्रक्शन। सो इट्स अ वेरी कस्टमाइज प्रोसीजर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अच्छा ये भी होता है कि किसी किस्म का प्रोसीजर हर एक शख्स पे किया जाए तो वो मतलब नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के वो काबिल हो जाता है। किसी भी किस्म का अगर प्रोसीजर हम एक शख्स पर किया जाए तो वो कितने अरसे में वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएगा? मकसद ये है डाउन टाइम अगर हम पूछें, आई थिंक इन अबाउट 2 weeks टाइम। लेकिन ये कि वो फ़ौरन काम पे वापस जा सकता है, ये नहीं कि वो वापस नहीं जा सकता। लेकिन ये कि वो जो माइल्ड स्वेलिंग है या ब्रूजिंग हो सकती है वो आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन तक रहेगी, जो कि सर्जरी से फिर भी बहुत बेहतर है। प्राइसेस बहुत कम है, सर्जरी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसके प्राइसेस कम हैं और इसके कॉम्प्लिकेशंस ना होने के बराबर हैं, बट यू हैव टू बी इन प्रोफेशनल ट्रेन्ड हैंड्स। एंड व्हाट अबाउट पेन, दर्द, तकलीफ? नहीं जी, देयर इज़ नो पेन, क्योंकि आप ज़ाहिर है पेन, सारी मेडिकेशन, हर चीज़ पहले से देखते हैं। लेकिन ये कहना कि उसके बाद पेन होगी, आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक और मैं चीज़ बताती जाऊँ, मॉर्फियस। मॉर्फियस का वर्ड पाकिस्तानियों के लिए बहुत नया है, लेकिन इसके अंदर ना तो आप कोई स्वेलिंग कर रहे हैं ना ब्रूजिंग कर रहे हैं। मेरे नज़दीक एजिंग ग्रेसफुली करने का मतलब ये है कि विदाउट यूजिंग एनी फिलर्स, बोटॉक्स एंड थ्रेड्स आप अपनी बॉडी को, जो खुदा की एक वंडरफुल क्रिएटेड मशीन है, उसको मौका दीजिए कोलेजन बनाने का। डार्क सर्कल्स, ओपन पोर्स, एक्नी स्कार्स और ढलकती हुई स्किन। आपकी स्किन इज अ कपड़ा वीक हो रहा है, कपड़े के धागे फट रहे हैं। कपड़े के धागों को कोलेजन या इलास्टिन फाइबर्स कहते हैं। आप खुद बॉडी को रीजनरेट करने का मौका दें, और वो भी इसी कंपनी का जो अगला हम पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं, इसी के साथ, दैट इज कॉल्ड मॉर्फियस 8। मॉर्फियस 8 ऐसे समझ लें शिफा एंड अवैस कि जैसे गाड़ियों, लग्जरी कार्स में जब आप देखते हैं रेंज रोवर, जब आप देखते हैं रोल्स रॉयस, तो आप उसको किसके साथ ताबीर करते हैं? एक्सेलेंस, क्लास। सो दिस इज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी अगेन, मगर डन विद माइक्रो नीडलिंग। अगर आप इसके 2 to 4 सेशंस लेते हैं शिफा, और फिर ईयरली बूस्टर लेते हो, तो आपका बूढ़ा होना बहुत मुश्किल है, आपके पोर्स खुलना बहुत मुश्किल है। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मशीन मैं अपने लिए लेके आई हूँ। एंड मतलब मुझे हमेशा सब लोग कहते हैं कि क्यों थोड़ा देर लगी, बिकॉज दिस इज़ एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में लाते लाते थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इवेंचुअली वी हैव इट। सो अगर आप अपने बुढ़ापे को डिले करना चाहते हैं, मगर इन अ वेरी ग्रेसफुल फैशन, मैं फिलर्स, थ्रेड्स और बोटॉक्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ख़िलाफ़ उस सूरत में हूँ जब आप उसको एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। जैसे यू आर वेरी यंग, यू नो, तो आप कहेंगी जी मुझे कुछ ऐसा दें विच इज़ अ वेरी नेचुरल वे टू प्रिजर्व माई स्किन। हाँ ठीक है, वो बॉन्डे तरीके से बिल्कुल सही है कि यार बिफोर आई बिकम बैंकरप्ट कैन आई जस्ट टॉप अप सम क्रेडिट,
Can I save something? ठीक है, तो this is like saving yourself. डॉक्टर साहबा, कुछ लोग बहुत भोंडे तरीके से फिलर्स और ये बोटॉक्स वगैरह कराते हैं और किए जाते हैं प्रोसीजर को रिपीट, और वो अजीब मुंह जो है फूल के पंपकिन बन जाता है। तो ये वाला प्रोसीजर भी रिपीट करना पड़ता है? जी, मॉर्फियस ए डिपेंड करता है कौन किस एज में ले रहा है, किस वजह से ले रहा है, लेकिन 2 to 4 इज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ सेशन। और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि बूस्टर या टचअप सेशंस आप ईयरली बेसिस पे आपको लेने चाहिए, और ये एजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके अंदर कोई डाउन टाइम नहीं है, आप खाली थोड़ी सी देर के लिए रेड होते हैं इसके अंदर। और अच्छा, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में लाने की एक और बड़ी वजह ये है कि हमारे पास हर तरह के स्किन टाइप्स हैं। हमारे पास सांवले लोग भी हैं, थोड़ा और मज़ीद सांवला रंग भी है। इसका मतलब है कि लेजर्स के साथ साइड इफ़ेक्ट्स आते थे पिगमेंटेशन इश्यूज़, इसमें वैसे पिगमेंटेशन इशू नहीं आ सकता बिकॉज इट्स अ कलर ब्लाइंड टेक्नोलॉजी, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते। फिर एक बहुत अरसा पहले हमारे मुल्क में एक टेक्नोलॉजी मैं लेके आई थी अल्ट्रा फॉर्मर के नाम से, या अल्थेरेपी या अल्ट्रासाउंड, विच वॉज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। हाइफू के कितने साइड इफ़ेक्ट्स मैंने देखे हैं, अनबिलीवेबल। हाइफू का मतलब ये है कि साउंड वेव्स को आप मसल के लेवल पे लेके जाएं और टाइट करें, लेकिन मसल में जाने से पहले आप कहाँ से गुजर रहे हैं, स्किन एंड फैट। तो कई दफ़ा मसल टाइट करते करते पेशेंट का इतना फैट गिरा देते थे कि आप अगले 6 महीने में बजाय इसके कि एंटी एज करें, आप उल्टा ज़्यादा एज करना शुरू हो जाते थे, क्योंकि आपके फैट डिपॉजिट्स मेल्ट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो हाइफू तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी बहुत होती है, कोल्ड स्कल्प्ट। कोल्ड स्कल्प्ट कितना फ़र्क है बॉडी टाइट, जो इनमोड बॉडी टाइट है, उससे? सो कोल्ड स्कल्प्टिंग के लिए हम मशीन लेके आए बहुत पहले, अब तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन उससे कोई खातर ख्वाह रिजल्ट नहीं आए। उसके बाद भी कई मशीन्स आए जैसे कि मसल्स को मूव करें तो आपका फैट टूटता है। मुझे आज तक इनसे कभी रिजल्ट्स नहीं आए। मैं वो चीज़ लेके आऊँगी या लेके आ रही हूँ या आ गई हूँ जिससे मैंने रिजल्ट्स खुद देखे हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक and this is the most well reputed brand that is giving us a technology in our hands which can actually make us get rid of those extra blubber and fat deposits which are not supposed to be there. सही है। अच्छा, अब आपने क्योंकि टॉपअप की बात की थी, तो लड़कियां वो जो टॉपअप हैं जनरली किस एज के बाद से उनको ले लेने चाहिए? शिफा, मेरे पास ऐसी बच्चियां भी आती हैं, लेट्स से दे आर प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर्स। मेरे पास ऐसी बच्चे भी आते हैं जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, एंड एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 18 दे हैव लाइंस, रिंकल्स एंड इट्स बॉदरिंग देम। अभी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का ज़माना है, पीपल दे नो दैट दे वांट टू हैव अ फ्लॉलेस स्किन एंड दे नो दे कैन गेट इट। तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि देयर इज़ एन एब्सोल्यूट नो, बट येस यू हैव टू मेक श्योर कि वो मेडिकल सुपरविजन में अपने एल्डर्स की कंसेंट के साथ अगर आते हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स। सही। और ये जो मॉर्फियस है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स? मॉर्फियस के जैसे मैंने कहा, इट्स अ कलर ब्लाइंड टेक्नोलॉजी, देयर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन उससे पहले लेजर्स के साइड इफ़ेक्ट्स से लोगों के मुंह जल जाते थे, और ख़ास तौर पे आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे माशरे में लोग डरते ही इस वजह से थे कि लेज़र के बाद धब्बे पड़ गए, लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं पड़ सकते। हाइफू के साथ आपका लॉस हो जाता था फैट का, वॉल्यूम लॉस। इसके साथ आप किसी को वॉल्यूम लॉस नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी जितनी भी डेप्थ नीचे जा रही है वो आपके कंट्रोल में है। आप 2 या 4 mm से नीचे मत जाएं स्किन में, तो फैट में जा ही नहीं सकते। फेस को ब्लो करते जाते हैं, फैलाते जाते हैं, इन्फ्लेट करते जाते हैं, और आप अपनी नेचुरल लुक खोल देते हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू गिव यू नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन एंड हेल्प्स यू प्रिजर्व योर स्किन। प्लस जो हमारे एक जैसे मेरे अपने कितने ज़्यादा लोग जिम में आते हैं और वो ट्रेनिंग करते जाते हैं, दे आर परफेक्टली फाइन, लेकिन एक कोई लव हैंडल, वैसे आई वंडर व्हाई डू यू इवन कॉल इट लव हैंडल? It should be a hatred handle. So love handles are there. या वो एक छोटी सी पूंछ पेट के ऊपर निकली हुई है, या कई दफ़ा लोग वजन ज़्यादा नहीं लूज़ करना चाहते कि यार मेरा मुंह बिल्कुल हड्डियाँ, या दे हैव अ गॉन्ट लुक, लेकिन फिर भी वो डबल चिन नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर के आपको फिर थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लाइफस्टाइल में अपने खुराक का ख्याल नहीं रखेंगे, आप जिम नहीं जाएंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे। वो लाइफस्टाइल है, वो होगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हेल्प देगी, बट अगेन आई रिपीट, इन हैंड्स ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेंड डॉक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये बताइए? फेसबुक के ऊपर डॉक्टर फजीला अब्बासी, इंस्टाग्राम पे भी डॉक्टर फजीला अब्बासी, और अगर आप गूगल में मेरा नाम डालेंगे तो दुबई और इस्लामाबाद क्लिनिक दोनों के नंबर्स आ जाएंगे।